Hello and welcome to Learn English with Nandita. Traveling can be interesting, traveling can be intriguing, and traveling can be completely mystical. If you travel, it can teach you life in more ways than one. So today's topic will be about traveling. We are traveling to this mystical city. Can anyone identify what this city is? Are you ready? It is Kathmandu, the capital of our neighboring country, Nepal. But we will be traveling to Kathmandu with a chapter written by Vikram Seth. It is actually an extract from his book. Vikram Seth, as we all know, was an English Indian writer. In fact, he is still there. And he was not just a travel writer. He has written many novels. He is a poet as well. So once while traveling from China to Nepal, he visited Kathmandu and then came back to India. This extract has been taken from a larger novel of his, which is also a travel account, and is basically based on this city and its specialities, especially in terms of his religion and religious places, streets and marketplaces and crowd and all that. So let's visit Kathmandu through the eyes of Vikram Seth. आज हम लोग ट्रैवल पे काम पढ़ने वाले हैं और ट्रैवल कहाँ करने जा रहे हैं? हम ट्रैवल करने जा रहे हैं काठमांडू, लेकिन काठमांडू को हम देखने जा रहे हैं विक्रम सेठ की नज़र से। विक्रम सेठ एक इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और पोएम्स लिखे हैं। तो ये वाला जो नॉवल है, इससे उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर एज अ चैप्टर फॉर क्लास 9th बी हाइव में डाला है, विच इज़ ऑल अबाउट काठमांडू, जो कि बिल्कुल काठमांडू के हार्ड कोर को छूता है। उसके तरह तरह के रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बताता है, स्ट्रीट्स के बारे में बताता है। सो वी आर इनटू नेपाल एंड इनटू काठमांडू. So the chapter begins very abruptly because it is an extract, and it begins by talking about the author himself, and he introduces himself like I, and abruptly goes into what he is doing right now. Okay, so I get a cheap room in the center of the town and sleep till the morning with Mr. Shah's son and nephew. I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. So who is this I? I is of course Vikram Seth, and he is saying that he has not opted for something very fanciful and something very luxurious, but he has opted for a cheap hotel at the core of the city, and then he has utilized his time traveling to two very important places in Kathmandu, religious places of Hindus and Buddhists. So that's how the story begins. तो वो एक हिंदू टेम्पल में भी जाते हैं और एक बुद्धिस्ट टेम्पल में भी जाते हैं जब वो काठमांडू में रह रहे होते हैं, और उन्होंने काठमांडू का जो मेन स्क्वायर है वहीं पर ही एक चीप होटल ले लिया था। इसको वो बताते हैं। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी है या सेकंड पैसेज है, विच इज़ अबाउट पशुपतिनाथ टेम्पल, विच इज़ द हिंदू टेम्पल ही विजिटेड. सो ही स्टार्ट्स विद दैट. He starts his visit about Kathmandu with Pashupatinath temple. At Pashupatinath temple, outside which a sign proclaims entrance for Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. What do you mean by roam? Roam means to move here and there without any direction. ठीक है, इधर उधर घूमते रहना बिना कुछ सोचे हुए. तो यहाँ पर कौन कौन घूम रहा है पशुपतिनाथ टेम्पल के एंट्रेंस के आसपास? उन्हें कौन कौन नज़र आ रहे हैं? प्रीस्ट नज़र आ रहे हैं, पुजारी. हॉकर्स कौन होते हैं? जो कि सामान लेकर के इधर उधर बेचा करते हैं. ठीक
ठीक है। डिवोटीज़ जो भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं, टूरिस्ट जो वहाँ पर घूमने आए हैं वो नज़र आ रहे हैं, काउज, मंकीज़, पिजन्स, डॉग्स, मतलब एनिमल किंगडम भी नज़र आ रहा है। और एंट्रेंस पे क्या साइन लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदूज़ को ही एंट्री मिल सकता है। सो इट इज़ स्ट्रिक्टली अ रिलीजियस प्लेस फॉर हिंदूज़. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attentions are elbowed aside by other pushing their way to the front. Elbowed मतलब एल्बो से धक्के मार करके लोग एक दूसरे को पीछे करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी वर्शिपर्स एंड एवरी वन इज़ हैंकरिंग आफ्टर द प्रीस्टेस अटेंशन. सब कोई प्रीस्ट का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं. A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. So this has been repeated again and again, mentioning that how strict this temple is in terms of its norms and rules about Hindus only. ठीक है. तो एक प्रिंसेस आती हैं जो कि नेपलीज रॉयल फैमिली की हैं. उनको इमीडिएटली सब कोई जो है बाउ डाउन करते हैं, मतलब उनके सामने झुक करके उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें साथ ही साथ एंट्री मिल जाती है. लेकिन कुछ वेस्टर्नर्स जो कि सैफरन क्लैड हैं, मतलब उन्होंने गेरवा पहन रखा है, लेकिन उन लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, मना नहीं पा रहे हैं एंट्री में जो दरबान है उसको कि उन लोग भी हिंदू हैं. एंड इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, द रूल इज स्ट्रिक्ट कि हिंदूज़ को ही सिर्फ अंदर घुसने दिया जाएगा. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other while the other jumps onto a Shivalinga, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati. पशुपतिनाथ टेम्पल के पास ही एक होली रिवर बह रही है जिसका नाम है बागमती. उसी के आसपास वो देखते हैं कि जो मंकीज़ हैं वो भी एक दूसरे को झपट रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं. एक शिवलिंग के ऊपर जम कर रहा है तो कोई स्क्रीम कर रहा है. स्क्रीम करना मतलब चीख रहा है. तो monkeys are also playing around and fooling around. So it continues, that second part continues, the Pashupatinath temple. So we had stopped at river Bagmati, and where it is below, flowing below the temple. ठीक है, it flows below. A corpse is being cremated on its bank. Corpse मतलब dead body, cremated मतलब जब आप डेड बॉडी को जलाते हो तो उसे क्रिमेशन कहा जाता है. ऑन इट्स बैंक्स मतलब उसी बागमती रिवर जिसको कि होली माना जाता है, पायस माना जाता है, उसी के पास से कॉप्स भी जलाए जाते हैं. और वहीं पर ही ऑन इट्स बैंक्स वॉशरमैन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted मतलब withered, मतलब ख़राब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, is dropped into the river. तो वहीं रिवर के आसपास क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर एनिमल्स इधर उधर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, फिर नीचे बागमती रिवर की तरफ चले जा रहे हैं. वहीं पर ही श्राद्ध पूजा वगैरह और जो क्रिमेशन वगैरह जो है, चिता वगैरह चल रही हैं. वहीं पर ही वॉशर वुमन अपने कपड़े भी धो ले रहे हैं, वहीं बच्चे नहा भी ले रहे हैं. और फिर वहीं पर ही पानी में ही जो विल्टेड फ्लावर्स एंड ऑफरिंग्स हैं, जो भी चढ़ाया गया चढ़ावा जो सड़ चुके हैं, उनको भी पानी में ही गिरा दिया जा रहा है. सो यू कैन सी दैट through this chapter, through his experience of Pashupatinath and later a Buddhist temple, he wants to convey a message that every a sanctified religious place should be sanctified properly. मतलब उसकी sanctity बरकरार रहनी चाहिए. उसमें ये सब जो हम लोग गंदगी करने लगते हैं और वो हमारे लिए normalize हो जाता है, that should not be the case. That's what he wants to convey through this chapter. That is the theme of this chapter. Of course, the travel is the main theme of the chapter, but the travel has a message also. And what is the message? That not everything should be normalized. Then after he has seen whatever is happening with the Bagmati river and its water, he continues saying that a small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank when it emerges fully.
The goddess inside will escape, and the evil period of the Kali Yuga will end on a shrine, a place of worship. So shrine is basically a place of worship. So what he sees is कि एक छोटा सा shrine, एक place of worship, मतलब एक छोटा temple, half protrude, मतलब protrude करना मतलब उभर के निकल के आना, वहाँ से उभर के दिख रहा है, और स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर तक दिख रहा है रिवर बैंक से। ये माना जाता है कि जब वो पूरी तरह से इमर्ज हो जाएगा, ठीक है, सो द गॉडेस इनसाइड, जो गॉडेस हैं वहाँ पर, वो निकल जाएंगी, वो बाहर चली जाएंगी, स्केप करेंगी, एंड ईविल पीरियड, जो कली युग को हम लोग ईविल पीरियड मानते हैं हिंदुइज्म में, वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। So this is the Pashupatinath temple. You can see the picture, a black and white picture of Pashupatinath temple, but with a clear reference of Bagmati river flowing below in your in the book as well, right? So let's continue with the chapter. In the third part, we go to the Buddhist stupa, है ना, Buddhanath stupa. At the Bodhanath stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. ठीक है, तो उन्होंने पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बताया, और बताया कि किस तरह से वहाँ पर मतलब गंदगी फैली हुई है, लोग कैसे चीख चिल्ला रहे हैं, एनिमल्स कैसे एक दूसरे के साथ भिड़ जा रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, एंड ऑल दैट। बट यहाँ पर जो है इट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक सेंस ऑफ स्टिलनेस है, बहुत कामनेस है, राइट। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज मतलब बाउंड्री, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स मतलब ऐसे लोग जो कि वहाँ पर कहीं और से आए हुए हैं, किसी और कंट्री से आए हुए हैं, तो तिब्बत के लोग वहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, और उन्होंने वहाँ पर शॉप्स डाल रखे हैं इस बुद्ध स्तूपा के चारों तरफ, जो कि एक रोड से घिरा हुआ है। एंड व्हाट डू दे सेल? दे सेल फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर। ये सारी चीज़ें जो कि तिब्बतन स्पेशलिटीज़ हैं वो वहाँ पर मिल जाती हैं। देयर आर नो क्राउड्स, दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। तो ये एकदम क्वाइट है, एकदम स्टिल है, और it's very peaceful according to the author. In the fourth part, he continues with Kathmandu's and its busy street and vivid life and mercenary and religious places and other things. So Kathmandu is vivid मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत varieties हैं। mercenary मतलब यहाँ पर बहुत ऐसे लोग या ऐसे सामानें पहुँच जाती हैं जो कि किराए पे, है ना, पैसे दे करके वहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। रिलीजियस भी है, काठमांडू इज़ वेरी रिलीजियस, यू कैन सी लॉट मैनी काइंड ऑफ रिलीजियस merging in that city, like Buddhist Bodhanath stupa or Pashupatinath temple, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate, or copper utensils, and Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares. तो क्या क्या हो रहा है वहाँ पर आसपास? काठमांडू जो है बहुत विविड है, मर्सनरी लोग या चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं, रिलीजियस जगह है वो, वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल श्राइन, स्मॉल टेम्पल्स जैसे मिल जाते हैं, जहाँ पे कि फ्लावर एडॉर्न डेटीज़ मिल जाते हैं। डेटीज़ मतलब जो मूर्तियाँ हैं वो फ्लावर से डेकोरेटेड है, एडॉर्न मीन्स डेकोरेटेड है। और इनके जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ही बिजी एंड नैरो हैं। वहाँ पर आपको फ्रूट सेलर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको फ्लूट सेलर्स मिल जाएंगे, बांसुरी बेचने वाले, फल बेचने वाले, हॉकर्स मिल जाएंगे, मतलब तरह तरह की चीज़ें बेचने वाले, चिल्ला चिल्ला के जो बेचते हैं। चॉकलेट्स मिल जाएंगे, फिल्म रोल्स मिल जाएंगे, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स भी मिल जाएंगे, और नेपलीज एंटिक्स भी मिल जाएंगे। एंटिक्स मतलब एनीथिंग विच इज़ ऑफ रेलेवेंस फ्रॉम हिस्टोरिकल पास्ट, ठीक है, जो कि पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। कोई भी मतलब आपके टूल्स हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं,
कोई बड़ा सामान भी हो सकता है, तो वो भी आसानी से मिल जाते हैं। और आपको गाने सुनने को बहुत सारे फिल्म सॉन्ग्स इधर उधर ब्लेयर करते हुए ना, बहुत ज़ोरों से चलते हुए आपको रेडियोज़ में, कार के हॉर्न्स वगैरह, मतलब बहुत तरह से वहाँ पर आवाज़ें फैली हुई हैं। एंड दीज स्ट्रीट्स आर वेरी बिजी, फुल ऑफ मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स, काउज, एवरीथिंग, राइट? So this is the Bodhanath Stupa he is mentioning, as you can see on your screen right now. We'll continue with the chapter. uh, he says, I indulge mindlessly. Indulge मतलब किसी चीज़ में रम जाना, किसी चीज़ में अपने आप को घुल मिल जाना, किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना। तो ही इज़ इंडल्जिंग हिमसेल्फ विद ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स अवेलेबल टू हिम माइंडलेसली, मतलब बिना सोचे समझे। बाय अ बार ऑफ marzipan, corn, the cob roasted in the charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon. तो marzipan एक तरह का मिठाई होता है बेसिकली। ये देखो, ये मिठाई है, ठीक है। इस तरह के कलरफुल मिठाई होते हैं जिसमें कि आमंड पेस्ट वगैरह के साथ है ना। और यहाँ पर कुछ और भी स्पेशल है। क्या है इसमें? कॉब रोस्टेड है, कॉब्स को रोस्ट करके फिर चारकोल के ब्रेजियर्स में उनको पकाया गया है। और वो पेवमेंट्स में ही, मतलब लेन्स में ही मिल जाते हैं। उसमें रब्ड सॉल्ट भी है, चिली पाउडर भी है, उसमें लेमन भी डाला हुआ है। तो जो कॉर्न हम लोग खाते हैं वो खा रहे हैं, और marzipan भी वो खा रहे हैं। मतलब तरह तरह की चीज़ें, मतलब सॉल्टी चीज़ भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, आलमंड की मिठाई भी खा रहे हैं, और सॉल्टी कॉर्न कॉब रोस्टेड भी खा रहे हैं वो। And I was also indulging myself with a couple of love story, comics and even a reader's digest. तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने मतलब ख़रीदारी की, और खाया पिया और पढ़ा, ये सब किया, ठीक है। All these I washed down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better of it. फिर ये सब खाना पीना करने के बाद, इवन रीडर डाइजेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? कोका कोला, बिकॉज व्हाट वी डू कि इसमें सोडा होता है, कोका कोला वगैरह या ऑरेंज या लेमन सोडा वगैरह जो मिल जाते हैं, विच आर नॉसिएटिंग। मतलब जब आप पी रहे हो तो इट माइट फील लाइक कि नाक बंद हो जा रहा है, सांस अटक रहा है, बट देन व्हेन यू गल्प इट डाउन, इट टेक्स डाउन लाइक एवरीथिंग अलॉन्ग साइड इट, एंड और जो आपने जो भी खाया पिया होता है वो वॉशेस डाउन, एंड थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होता है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर विद द ऑथर. I consider what route I should take back home if I were propelled by enthusiasm for travel per se. I would go by bus and train to Patna, then sail up to Ganges, past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted means very tired, and homesick. Homesick मतलब मुझे घर की याद आ रही है. Today is the last day of August. Go home, I tell myself, move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. तो वो पहले तो सोचते हैं कि मैं सोच रहा था, कंसिडर कर रहा था कि कौन सा रूट चूज़ करूँ। तो मैं एक काम कर सकता था कि इफ़ आई वर प्रोपेल बाय एंथुजियाज़म मतलब एक्साइटमेंट अगर मुझे प्रोपेल करता, मुझे खींचता अपनी तरफ, तो मैं कैसे सिर्फ ट्रैवलिंग के पर से, मतलब ट्रैवल करने के धुन में अगर रहता तो मैं बस ले लेता। बस से फिर ट्रेन लेते हुए मैं पटना पहुंच जाता, फिर वहाँ से गैंजेस में सेल करते हुए मैं बनारस जाता, फिर वहाँ से इलाहाबाद जाता, फिर उसको यमुना मतलब इलाहाबाद में तीनों रिवर्स हैं, तो यमुना को पकड़ के मैं फिर आगरा, फिर वहाँ से दिल्ली, ऐसे करके मैं जा सकता था। तो मतलब लैंड रूट, ट्रेन, रेल ट्रैवल and then water travel, everything I would have taken up if I was so enthusiastic. But he has already, I told you कि वो ये जो है ये लंबा बुक है, तो उसमें उन्होंने चाइना ट्रैवल के बारे में भी बताया। तो चाइना से वो ट्रैवल करते हुए फिर नेपाल पहुँचे, और वहाँ से वो घर वापस आना चाहते हैं। ही इज़ वेरी होम सिक एंड वेरी एग्जॉस्टेड, बहुत टायर्ड है। तो वो क्या करते हैं, नेपाल एयरलाइंस का एक टिकट लेते हैं और नेक्स्ट डे का फ़्लाइट बुक कर लेते हैं. आई लुक एट द फ्रूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल. तो वो होटल जहाँ पर वो है, ये देखो ये नेपाल का मेन स्क्वायर है जो आपका पिक्चर आपके सामने में नज़र आ रहा है. वहीं पर उन्होंने होटल कहीं पर लिया होगा और वहीं पर अपने होटल में ही से वो देखते हैं कि एक फ्लूट सेलर मतलब बांसुरी बेचने वाला क्या कर रहा है. इन हिज हैंड इज़ अ पोल विद अटैचमेंट. सो अपने बिजी स्क्वायर में ही अपने होटल से ही वो एक फ्लूट सेलर को, एक बांसुरी वाले को देख रहे हैं. एंड व्हाट इज़ ही डूइंग,
the fruit seller, in his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 basuris protrude. Protrude मैंने बताया कि उभर के निकल के बाहर आ रहा है, in all directions like the quills of a porcupine. तो उनके बांसुरियों को जो कि इस तरह से निकले हुए हैं चारों तरफ से, उसको वो पॉक्यूपाइन के क्विल्स की तरह बता रहे हैं, ठीक है. दे आर ऑफ बैम्बू, दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स. From time to time he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a few minutes. तो फिर वह उसके खुद के ही फ्लूट्स में से वो सेलेक्ट भी कर रहा है और कभी थोड़े थोड़े मिनट्स के लिए वो बजाते भी जा रहा है. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. ज़्यादा वो शो ऑफ नहीं कर रहा, डिस्प्ले नहीं कर रहा है. मेडिटेटिवली बहुत ही ध्यान से वो बजा रहा है, हल्के से बजा रहा है. He does not shout out his wares. अपने चीज़ों के लिए वो चिल्ला नहीं रहा है. Occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. तो वो ज़्यादा उत्साहित नहीं है बेचने के लिए, जबकि ये एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए ना, वही उसी से ही उसका पेट पल रहा होगा. वो ज़्यादातर क्या है, वो बचाने में ध्यान दे रहा है और कभी कभी फ्रूट सेलर से बात कर रहा है. ओकेजनली वो अपने बांसुरियाँ बेच भी ले रहा है और ऐसा ही उसने अपना पूरा ज़िंदगी भी जिया होगा. दैट्स व्हाट द ऑथर फील्स. फिर 7th पार्ट में ही कंटिन्यूज विद दैट rant that he's in about the basuris and flutes. I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. There is no culture that does not have its flute. The reed-ney, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep basuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America. तो ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है, वो कहते हैं, जहाँ पे कि बांसुरी अपनी नहीं हो, है ना. फिर वो बहुत 5 तरह की बांसुरी के बारे में बताते हैं. एक तो रीड ने बताते हैं, फिर रिकॉर्डर बताते हैं, फिर बताते हैं जापान में साकुहाची करके एक तरह का फ्लूट होता है, फिर हिंदुस्तानी में डीप बांसुरीज होते हैं और साउथ अमेरिका में भी ब्रीदी फ्लूट्स होते हैं, मतलब हल्के ब्रेथ से जो बजाए जाते हैं उस तरह के फ्लूट्स होते हैं. और फिर और एक तरह के होते हैं, वो होते हैं हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट. हाई पिच मतलब बहुत श्रिल, बहुत पतली ऊंची आवाज़ आती है, ठीक है. ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास. इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन. येट टू हियर एनी फ्लूट इज़, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest to its phrases and sentences to the human voice. Its motive force too is living breath. Its too needs to pause and breathe before it can go on. तो वो कहते हैं कि जो फ्लूट का म्यूज़िक है वो इतना मुझे आकर्षित करता है. क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन वॉइस एंड सेंटेंसेस से बहुत मिलता जुलता है. इसमें कॉमनैलिटी है, ये क्लोजेस्ट म्यूज़िक है ह्यूमन वॉइस से. एंड हर एक तरह की बांसुरी का अपना ही एक कंपास होता है, अपना ही एक तरह का फिंगरिंग होता है, लेकिन वो ज़रूर आपको खींचता है बिकॉज इसके पॉज और ब्रेथ ये सारे जो हैं वो ह्यूमन वॉइस से ही इतना इफ़ेक्टिव है. तो यहाँ पे जैसे कि बहुत तरह के यहाँ पे फ्लूट्स दिए हुए हैं, बट इस बांसुरी वाले के पास सारे ही बांसुरी जो हैं वो बैम्बूज़ की हैं. फिर लास्ट में वो क्या कहते हैं, that I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and suddenly have not invested them with the significance I now do. तो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया. मैंने जैसे पहले भी बताया कि विक्रम सेठ इज़ नॉट जस्ट अ नॉवलिस्ट और अ पोएट, बट ही वाज आल्सो अ ट्रैवल राइटर. तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवल किया एंड उसके ऊपर लिखा भी है. और वो कहते हैं कि मैंने इससे पहले भी लॉन्ग जर्नीज़ किए हैं बिफोर कमिंग बैक टू होम, बट आई हैव नेवर बीन अफेक्टेड बाय सच स्मॉलर डिटेल्स. बट दिस टाइम आई वाज सरप्राइज्ड. आई सरप्राइज्ड myself. So ये वाला extract जो है विक्रम सेठ का, this is from a larger book that he has written, which is Heaven Lake, है ना, which includes his visit to China in detail as well. ठीक है. So that's the entire extract for you from Beehive, Kathmandu, which is a mystical religious city from the country Nepal. And I would like you all to keep learning by keep exploring. So that's it. Good day and thank you.
Please do like, share, and subscribe for more such content.